And there are so many social, cultural factors. I think why this HIV has been spreading. I'll just read it out, or I'll just make it very concise. I'll not go through that because I've taken a lot of time. So gender inequality and male dominance, that is the most important. If you go into the villages and all these things, the male dominance, that sexual violence, even violence in the family, ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, सोशल प्रॉब्लम है, जिसके कारण एक लेडी कैनॉट स्टॉप, और शी कैनॉट, if a male approaches or the husband approaches, she has no right to stop. That is one very, जिसको हम लोगों को awareness बढ़ाना पड़ेगा among the ladies, among the people, that this type of activities has to stop. Poverty is of course another, stigma and discrimination. This is a very important social aspect which I have already said, कि अगर किसी को है तो उसको discriminate ना करें, उसको साथ में रखें. But at the same time, what happens is this person with the fear कि मेरे को तो HIV positive test हो गया, now if I tell others then I will be stigmatized. So that society में जो feeling है, that because of lack of awareness, that will make him not tell to others or to come out with the fact that he will not announce that he has HIV positive, right? तो वो क्या होगा, वो क्योंकि वो डर है discrimination का, and he will go ahead with the more sexual activities. He will not even tell his wife, अगर wife को कहीं शक ना हो जाए, and he will go like unprotected sex, जैसे कर रहा था वैसे वो चालू रहेगा, just to avoid being recognized as stigmatized as HIV positive. So this is a very important stigma and discrimination. If we keep them safe, then this will increase our chances of that person coming out with the fact that he is HIV positive, and he can talk to others. If we accept in our society a HIV positive person, right? Poverty is of course commercialization of sex. That is a very big problem that is happening because of the poverty. Lack of knowledge and misconceptions about HIV and cultural beliefs and practices. That is if you go to the village, if you go to the South African countries, I have been to that, there is a belief that if I am HIV positive, if I have a sex with a virgin, then my HIV status will go down. These are the beliefs, and what happens is, in that process they keep on infecting others. So these are the problems, these beliefs which are causing such problems. So I think I will stop here. This can protective against HIV infection, including male and female condoms. There is a female condoms also available. Antiretroviral, voluntary male medication, circumcision, behavioral changes. That is what I have already talked. The use of clean needles and treatment of people living with HIV. I thank you so much for your patient hearing, and I think का इलाज नहीं था. आजकल मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे को HIV हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर एड्स के डर में रहूंगा. लेकिन इतना आराम से नहीं आप जिंदगी बिताइए कि आप HIV लेके इलाज के भरोसे में सारा अनरिस्क बिहेवियर करें. और ये जो HIV की दवाइयां हैं, क्योंकि ये एक भूताणु है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी वायरल ड्रग्स और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. सरकार की जो संस्थाएं हैं जहां पे ये ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं ART सेंटर्स. डेजिग्नेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकार के, तो वहां पे ये दवाइयां मुफ्त में मिलते हैं. उनको पता है कि कितने डोज पे किसको क्या देना है. तो ये मेडिकल टर्म से मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना जान लें कि इसका आविष्कार हो चुका है. 4 किस्म की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, जिसमें किसको क्या देना है ये डॉक्टर लोगों को जानकारी लेना चाहिए. और इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको जानकारी लेने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि आप वायरल लोड, आपकी प्रतिरोधक शक्ति, CD4 काउंट, ये दोनों टेस्ट होते रहते हैं ताकि आप जानकारी लें कि मेरा इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. गर्भवती महिला को अगर HIV पॉजिटिव है तो गर्भ के दौरान या गर्भ के बाद दोनों को दवाई भी मिल सकता है, जिसके तहत बच्चा स्वस्थवान होगा और HIV आगे लेके नहीं जाएगा. तो ये आजकल, और सबसे खास बात है कि अगर HIV वायरस को धूप में सुखा दोगे तो मर जाएगा, पानी से दूर रखोगे तो मर जाएगा,
डेटॉल के पानी में धो दोगे तो मर जाएगा, साबुन में धो दो तो मर जाएगा। लेकिन ये चीज हम करते नहीं है ना। सबसे गड़बड़ी है कि हम हाई रिस्क बिहेवियर के बाद अगर ये सब काम करते, डेटॉल या स्पिरिट या हाथ धोते साबुन में, या खरोच हो जाता है कहीं, तो ये वायरस इतना सूक्ष्म है, लबाइल है कि थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा केमिकल तो ये मर जाता है। HIV वायरस से बहुत सूक्ष्म है। HIV तो सॉरी हेपेटाइटिस बी वायरस से भी ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि HIV हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ताकतवर है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप प्रिवेंशन की ज्यादा ध्यान दें, ट्रीटमेंट की ज्यादा ध्यान ना दें। प्रिवेंशन में पहले चीज जैसे अभी बताया था, अभी भी आपको दोहरा रहा हूं कि जानकारी ही बचाव है। आप जानकारी लें और वही प्रैक्टिस करें। बहुत कुछ चीज टेक्निकल से बाहर है, सामाजिक अपना व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक को मजबूत बनाएं, अपनी विवेक इतना बढ़ाएं कि वो अनसेफ बिहेवियर हम करें ना, अपना ज्ञान इतना बढ़ाएं कि हम ये जो एक्टिविटी है जिससे ये वायरस बढ़ता है उससे हम दूर रहें, और ये संकल्प लें कि मैं अगर नहीं चाहूंगा तो मुझे HIV नहीं होगा। उसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घाव है तो हो सकता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो नहीं होगा। अगर मुंह में घाव नहीं है, पेट में घाव नहीं है, तो हम जहर भी पी सकते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए, और दूसरी क्वेश्चन जो पवन भाई ने पूछा था, एक मच्छर वाला, सबको ये डर लग रहा होगा कि जानकारी से तो डर बढ़, तो खून किस में लेता है? अगर आप खाएंगे तो आपके मुंह में जाएगा ना। तो जब इंजेक्ट करता है तो उसमें अभी तक वायरस नहीं पाया गया, तो इसीलिए डोंट बी अफ्रेड, मॉस्किटो कैन नॉट स्प्रेड। पैकेज तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लोग यहाँ तक डीपली जाते हैं कि क्या विटामिन डी का वो है ना, इवैल्यूएशन है ना, उसमें शौक से करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या मिनरल्स अपना डिटेक्ट करना चाहते हैं। बट कोई भी आज तक, मैंने जितने को पूछा, कोई भी आज तक ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स को पूछा नहीं क्या आप मिनिमम मलेरिया, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस का टेस्ट करके दोगे मेरे स्टेटस? कोई नहीं पूछता है। पूछता है 36 है, 48 पैरामीटर्स है, तभी मैं ले लूंगा ये पैकेज। मतलब पैरामीटर्स का पैकेज लोगों को पता है। क्या कभी किसी ने ऐसे डिस्कस किया है इन दिस एरिया, मतलब इस हॉल में जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने पूछा है कि हेपेटाइटिस और एड्स का टेस्ट इंक्लूड है क्या, और इसका काउंसलिंग इंक्लूड है क्या? क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, अगर अपने आप को जान से रहे हैं। आज भी यही है जो नारा है इस साल का, नो योर स्टेटस। क्या स्टेटस खाली विटामिन डी का पता चल जाने से आप स्वस्थ बनेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आप थोड़ा सा ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स और जितने भी ये देते हैं उनको आप एडवाइस कर सकते हैं व्हाई दे कैन नॉट इंक्लूड दिस? सर ये निकालेंगे। फिलहाल HIV जानने के लिए आप कोई भी टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं HIV का, बट इट हैज टू गो थ्रू ए पर्टिकुलर सीक्रेसी। ये ओपन नहीं है। मेरा टेस्ट HIV दूसरों को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मेरा HIV स्टेटस केवल मेरे को पता चलेगा। जब तक मैं नहीं चाहूं मेरा HIV स्टेटस कोई नहीं जान पाएगा, ये भी जान लीजिए। तो इसीलिए आजकल पवन भाई बोल रहे थे कि बिफोर मैरिज यू शुड नो द HIV स्टेटस ऑफ योर स्पाउस। अगर स्पाउस वुड बी स्पाउस अगर वो मना करेगी या करेगा कि मैं नहीं दूंगा, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। शादी करना है तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। लेकिन HIV स्टेटस म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जबरदस्ती नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो जाना चाहिए कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। इफ यू आर फ्री एंड इफ यू आर गोइंग टू हैव ए लाइफ पार्टनर, then I suppose that that person should be open to tell the status. one more question. Or vice versa. Yeah, of course. Both. It has to be vice versa. It has to be both partners, both the things. Can I ask you a question? So a few days back, so then I will also hear of so many
But that should be connected with some good organizations like Red Cross and somehow. So that would be. So that's a great news, sir. You are doing a very good novel job. Not in, even in Odisha, even Chandni Sahu, ma'am jante hai. Last time in Odisha we have organization, every year we are doing that. In various districts, 7 good people from Hyzen family. Out of 200 blood donation within 1 week, 7 people come to know. Then it was very great thing that blood donation camp should be encouraged by many of the organizations. सर आपको अगर HIV स्टेटस जानना है तो बहुत नोबेल काम है कि गेट ए ब्लड डोनेशन डन। आप ब्लड डोनेशन करिए, अपना HIV स्टेटस खुद पता चल जाएगा। थैंक यू। और मैं सर्च प्रोग्राम कि डे एंड नाइट सर भाई हेला नहीं, इसे मैंने यूज्ड टू फॉलो एवरी डे। So great thing that he could organize in a nice way. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। ଭଲ କାମ ସେଇ साथ में मेरा फोटो है ये नोटिस करो कभी कभी ये करो ये उड़ीसा भाषा का प्रचार प्रसार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस विरासत को भी ये लोग बनाए रखे हुए हैं। और हर रविवार को इसकी क्लासेस दी जाती है। ये हमने स्वच्छता अभियान किया था, उसका बहुत थोड़ा सा वीडियो है। ये संजय भाई ने 780 एकड़ का पूरा बाउंड्री है, उसको हमने साफ किया था। सुबह से 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हमने साफ किया था। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मुझे तारे जमीन फाउंडेशन को ऊपर किसी कहवाक चाहूँगी। तारे जमीन फाउंडेशन जो चेयरमैन ऋषिकेशन सुदूर बालेश्वर आसी एठी मांडीगाँव में रही गोटे निजर ऑर्गेनाइजेशन करिसेंती। कोनोसी स्वार्थ जनित कार्य ये नुह। दिल्ली में तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, बहुत ऑर्गेनाइजेशन काम करुच्ची, किंतु आज जो आगे जो विश्व एड्स दिवस उपर से कार्य करने चाहूँगी। एक सुंदर संदेश समस्त प्लम्बर ठू पार्लियामेंट पर्यंत ये काम कर समस्त को विश्व एड्स दिवस रे आज जो आपको और बड़े हर्ष का विषय है कि
मैं लगभग 3 से 4 वर्ष से तारे जमीन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये 3 से 4 वर्षों से समस्त मेरे प्यारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं सबको मेरा प्यार भरा ओम शांति।